Welcome back to our channel. Breaking news is coming from Accenture, and this is the big breaking news, guys. Because if you see that what is written here, that application, I want to select one. Just wait a minute. Yeah, you can check that you are not eligible for the slot selection. I already told you they are sending the interview slot mail, which you can see that congratulations on starting a new role. They are sending this mail also, plus one more mail is there, that interview slot you have to book of Accenture, which I already told you. Because if you go to the video section, you can check interview slot booking mail is out, online test mail is out. Means two phases, means two hiring is going on, not two hiring. मतलब उसी hiring में दो चीज़ें चल रही हैं. First of all, online test is ongoing, new mail is out. Second one is interview slot booking. But before you are going to the booking through the slot, after you are selecting or clicking on submitting, ठीक है, then you are getting this pop-up, thank you, your name, you are not eligible for slot selection process, please reach out the Accenture training. So what is the solution about this? Because you already got the selection, means interview selection slot mail, and after selecting the slot you are getting this mail, means this pop-up. And one more thing is their application already exists. So what is going on, guys? Please watch video till end. First of all, understand one thing. Accenture hiring update, test plus interview started, and interview slot booking mail is out. Schedule your interview email, log into your dashboard, select three preferred time slots, and your interview will be scheduled accordingly. This means you are shortlisted for the next stage. First of all, this is the normal update, which is Accenture is sending the assessment mail and interview mail. Now, what is the hiring process? First is clear flow is there, that resume shortlisting, then online assessment, then interview is there, which you are getting right now. Plus, if you are getting interview mail, you are already clear resume and test stages. Means you already cleared these two stages, then you are in this stage. Now, common problem, very important, unable to apply, error, reason your application already exists in the database. Now, the connection of this line is like this. Application already exists, means you are going to the apply, ठीक है, you are applying with new email id or old email id, doesn't matter, but application already exists. Why? Because they are taking the आधार कार्ड. ठीक है, आधार कार्ड की वजह से ये एग्जिस्ट दिखा देता है कभी कभी, और कभी कभी न्यू ईमेल से करो तब भी यहाँ पे यही ऑलरेडी एग्जिस्ट का मेल आता है. सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन दैट वन वीडियो दैट यू हैव टू विड्रॉ द एप्लीकेशन. और विड्रॉ कैसे करते हैं, पोर्टल पे जाना है, यू हैव टू गो टू द पोर्टल एंड चेक आउट द withdrawal option, then you can easily withdraw your application. Because remove withdrawal old application is compulsory, then you can apply again properly. ठीक है, this is the only solution. And how to follow the steps, you don't have to watch any video or anything, just go to the portal में already वहाँ पे search मारो withdrawal application, then there is already written the steps you have to follow. Rejection reason, many candidate are getting rejection, main reason है weak resume. ये अभी का बता रहा हूँ गाइज, मैं अप्लाई किया रहा, ठीक है. आफ्टर अप्लाइंग व्हाट इज गोइंग ऑन, ऑलरेडी टोल्ड यू टू स्टेजेस इज गोइंग ऑन. फर्स्ट इज टेस्ट मेल इज आउट, सेकंड वन इज इंटरव्यू स्लॉट इज आउट. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टेस्ट. आफ्टर अप्लाइंग you are getting the selection mail, means your test mail, which is first stage and we can say first round. After that there one possibility is, another possibility is you are getting the rejection mail. ठीक है, these two thing is happening right now. So what is going on, keep in mind key. So first of all, keep in mind this is not only one valid reason that weak resume is there. There is many reason. First is weak resume. This is obviously यार, क्योंकि हर MNCs में देखो resume shortlisting होती है, ठीक है, बट इतना इसका इसका वेटेज ज़्यादा नहीं होता. बट सेकेंड जो पॉइंट है ना, दैट विल बी, मेरे को तो यही लगता है कि इसी वजह से रिजेक्शन आ रहा है. सो द रीज़न इज़ यू आर अप्लाइंग अगेन विद द ओल्ड ईमेल आईडी. ठीक है, तो वहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है जब अकाउंट, तो वहाँ पे तुम्हें रिजेक्शन का ही मेल देखने मिलेगा. ठीक है, और रिजेक्शन एक तरीके से ये भी तुम मान सकते हो कि एप्लीकेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट मीन्स, so you can already see, you can also consider this as a rejection. So you have to first withdraw the application. Watch video till end, I will tell you step by step each and everything. What is the mistake? Using same resume for every resume plus not matching job description, not ATS friendly. पहली चीज़ ATS friendly साइड रख दो, सेम रेज्यूमे साइड रख दो. अब तुम जाओ एसेंचर की जो भी हायरिंग के लिए अप्लाई करो, उसका JD रीड करो, और JD में जितने डोमेन से पुट दैट इन रेज्यूमे, then definitely you will see the shortlisting mail. So what should you do now? Update resume according to the role, read the responsibilities part and required part. यहाँ पे जितने डोमेन दिख जाएं as it is put in resume.
ऐड कीवर्ड टेक स्टैक प्रोजेक्ट इज़ कंपलसरी, प्लस अगर उसी डोमेन का जो रिक्वायर्ड स्किल का सपोज जावा मांग रखी है और जावा का ही प्रोजेक्ट ऐड कर दोगे दो, तो डेफिनेटली विल सी द बेनिफिट। इवन तुम्हें नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट लिस्टिंग करवा लो, इजी इंटरव्यूज़ होते हैं एमएनसीज के, बिना पढ़े भी निकाल सकते हो, मतलब बेसिक पढ़ के तो निकाल ही लोगे। जावा इतना भी प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, कोई भी लैंग्वेज हो। अगर तुम देखते हो कि रिक्वायर्ड स्किल में सी शार्प भी लिखी है जो कि हमें बिल्कुल नहीं आती, बट यू कैन इजीली पुट इन रेज्यूमे टुगेदर शॉर्ट लिस्टिंग मेल, बिकॉज ये जो सी शार्प है तुम बेसिक पढ़ के भी इंटरव्यू निकाल सकते हो एमएनसी के। नाउ की प्रोजेक्ट्स रेडी फॉर इंटरव्यू, प्रिपेयर डीएसए कोर सब्जेक्ट एंड एचआर क्वेश्चंस। नाउ इंपॉर्टेंट अपडेट, इंटरव्यू आर ऑलरेडी ऑनगोइंग, स्किल इंटरव्यू शेड्यूल अराउंड लेट 27 अप्रॉक्स विच इज़ टुडे, टेस्ट मेल आर ऑल्सो बींग सेंड, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। प्रोसेस इज़ फुली एक्टिव नाउ, रोल्स करंटली एक्टिव कौन कौन से, फर्स्ट इज कस्टम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वी आर गेटिंग द कस्टम सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंटरव्यू स्लॉट प्लस टेस्ट मेल। पाइथन रोल्स, सैप और ए हो गया, डॉट नेट, मल्टीपल हायरिंग ट्रैक ओपन, अप्लाई स्मार्टली, ठीक है। जो भी रोल के लिए अलाइन कर रहे हो and you have knowledge, you can easily hit the apply button. Advice, final advice, don't wait for one update, apply to other roles, multiple hirings is ongoing, I already uploading daily, and if you didn't apply for this, I just want to tell you, इस वीडियो में जाना, इसमें तुमको एक हरमन की हायरिंग मिलेगी, ठीक है, और पीडब्ल्यूसी की, अगर वो अप्लाई नहीं किया गो एंड हिट द अप्लाई बटन। नाउ फिक्स योर रेज्यूमे, फर्स्ट इज बिगेस्ट गेम चेंजर, फिक्स योर रेज्यूमे एज पर जेडी। अब जेडी में दो ही चीज़ें होती है, ठीक है, फर्स्ट इज़ नॉट टू, थ्री, तीन चीज़ें होती हैं जेडी में, और जो दो चीज़ें होती हैं फर्स्ट की वो होती है मैंडेटरी, थर्ड वन होती है प्रीफर्ड। फर्स्ट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है, इसका जो जेडी का पूरी लाइन होती है वो रीड करने के बाद जो डोमेन मिलता है वो ऐड करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उस डोमेन की मिल रही है तो तुम्हें ऐड करना पड़ेगा, भले ही वो रिक्वायर्ड स्किल में नहीं लिखी है। सेकेंड थिंग इज़ रिक्वायर्ड स्किल विच इज़ वेरी कंपलसरी टू पुट डोमेन, जितने डोमेन है सब ऐड करने हैं रेज्यूमे में, ये दो चीज़ें मैंडेटरी होती हैं। प्रीफर्ड क्या होता है, जिसमें कुछ टैक स्टैक्स और कम्युनिकेशन स्किल्स, इंग्लिश स्किल लिखी होती है, विच इज़ थर्ड वन प्रीफर्ड है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ ये तीसरी मैंडेटरी है जो कि ऐड करना ज़रूरी होता है। सो दीज आर द थ्री थिंग्स यू कैन फाइंड इन जेडी, एंड according this steps you can take this step and update your resume. Now comment yes if you receive the test or interview mail, ठीक है। tell your role and date so other can track the applications and what is going on and current status। तो यहाँ पे आप विड्रॉ के लिए तो देखो चीज़ें समझो कि जो विड्रॉ है, बात समझना, विड्रॉल है, अगर तुम विड्रॉल नहीं करोगे तो ओल्ड एप्लीकेशन जो होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं, जब वो इनएक्टिव है जब तक वो वहाँ से नहीं हटेंगे तो एक्टिव वाला तुम्हारा वहाँ पे शो नहीं करेगा और ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखाएगा। जैसे ये डिलीट होता है, सपोज़ ये हमने डिलीट कर दिया, तो जैसे ही अप्लाई करोगे ना तो एक न्यू एप्लीकेशन फ्रेश एक्टिव होगा पोर्टल पे, एंड यू कैन ईजिली सी द शॉर्ट लिस्टिंग मेल प्लस राउंड वन मेल, दिस इज़ द रीज़न। बट कभी कभी क्या होगा कि जब ओल्ड एप्लीकेशन को डिलीट करोगे तो कई लोग क्या करते हैं उसी ओल्ड ईमेल से ही अप्लाई करते हैं, तो ये गलती ज़िंदगी में कभी मत करना। भले ही अप्लाई हो जाएगा, टेस्ट की लिंक मिल जाएगी, बट सेफ अगर खेलना चाहते हो तो न्यू ईमेल से करना। आफ्टर विदड्रॉइंग ओल्ड एप्लीकेशन यू हैव टू क्रिएट न्यू ईमेल आईडी एंड हिट द अप्लाई बटन विद दैट न्यू ईमेल आईडी, ठीक है। बस यही है जो तुम्हें शॉर्ट लिस्टिंग दिलवा सकता है यहाँ पे। यहाँ पे अगर देखो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन स्टार्टिंग अ न्यू रोल, ठीक है। इंटरव्यू को यहाँ पे देख सकते हो, स्लॉट बुकिंग है, नहीं नहीं ये इंटरव्यू कंप्लीट हो गया जिसका उसका, एक्सेप्टिंग एन ऑफर इज़ अ बिग डिसीजन। तो अगर तुम ऑफर लेटर चाहते हो, आई होप यू विल गेट टू सी द ऑफर लेटर, बट यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन, follow the preparation, without preparation you can't do anything, so hit the apply button. If you are having any query just comment down. Thanks for watching.